Have a look, sir. In the last class, we have seen up to de Broglie's equation. Today, we are trying to apply this de Broglie's equation to a given set of questions. That is, we are trying to understand how de Broglie's equation is applicable over here. So we know that lambda is equals to h by mv. Now we are taking two important questions here: an electron which is moving with 20 meter per second and a ball which is moving in a straight line at 20 meter per second and having a weight of 20 grams. We are trying to find out lambda for both of them. दोनों के लिए लैम्डा कैलकुलेट करने से मुझे पता चला इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वो मीनिंगफुल है, वो कंसिडरेबल है, बिकॉज दैट वेवलेंथ 0.364 into 10 to the power minus 4, वो 0.364 हो, 0.956 हो, कुछ भी आता, 10 to the power minus 4 जो है ये हम लोगों के लिए कुछ कंसिडरेबल वैल्यू है. Whereas on the right hand side, the value which I am getting for lambda, that is 1.656 into 10 to the power minus 33, that is almost negligible, that is almost zero. So that is why, sir, for microscopic or subatomic particles like electrons, protons, हमारा de Broglie's equation ज़्यादा justification देता है और ज़्यादा applicable हो जाता है as compared to large objects, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं. कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया सर. प्रियंका और प्रियंका क्लास सुन नहीं रही है? All right. So this is how you will be solving this. Next, if we move ahead, तो अब हम लोगों को पता चला कि sir, this wave nature is more pronounced if the atoms are having very small size, if the particles are having very small size, and yes, our electron is having a very small size. तो अब क्या हुआ? Next, हमारा एक केमिस्ट आता है, एक फिजिसिस्ट आता है, that is Heisenberg, and he tries to explain us Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Okay. तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं सर. ओके, से मैं अभी एक जगह बैठा हुआ हूं and I am speaking. Okay, I am speaking. Okay, now say for example I spoke a word and now I am asking you, मैं जो बात किया वो जो वेव है वो अभी कहां पे है? Now waves are continuously moving, they are traveling, right? तो उनका एक स्पेसिफिक पोजीशन हम लोग बताना बहुत ही मुश्किल होता है. इन द सेम वे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर डी ब्रॉग्लीज इक्वेशन से हमें पता चला, सर, स्मॉल पार्टिकल्स मूविंग विद सम वेलोसिटी विल श्योरली हैव considerable wave nature. Then what our Heisenberg is saying is this. It is the statement, okay? It states that it is impossible. It is impossible to calculate. It is impossible to calculate the position and velocity of an electron both accurately and simultaneously. Okay, so what is Heisenberg trying to tell us? Heisenberg's uncertainty principle tells us
Sir, it is impossible to calculate the position and velocity of an electron both accurately and simultaneously. इस बात पे गौर कीजिए. This is the statement actually. Now, what is he saying? Sir, if you are trying to calculate the position of an electron, okay, accurately, तो आप कर सकते हैं. If you are trying to calculate velocity of only velocity of an electron accurately, you can do it. But if you are trying to calculate position and velocity both simultaneously, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड दोनों के दोनों आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है. ओके, अकेले एक एक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पॉसिबल होगा. Accurately आप कर सकते हैं, like if you want to calculate only position of an electron and if you want to calculate it accurately, you can do that. If you want to calculate only velocity of an electron and if you want to do it accurately, you can do that. But if you want to calculate position and velocity both simultaneously at the same time, and if you are assuming that दोनों के दोनों तुम एक्यूरेटली पता कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं होगा. क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर. So the statement is very simple, sir. It is highly impossible to calculate the position and velocity of the electron both accurately and simultaneously. एक ही बार अगर हम लोग चाहेंगे at the same instant position और velocity दोनों का करेक्ट वैल्यू अगर तुम चाहोगे, तुम्हें नहीं मिलेगा. या तो सिर्फ पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो या तो नहीं तो सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसका इक्वेशन, इसका सपोर्टिंग इक्वेशन क्या दिया हेजनबर्ग ने, चलिए देखते हैं. तो इसका सपोर्टिंग इक्वेशन जो हेजनबर्ग ने दिया वो कुछ ऐसा है. क्या है वो, चलिए देखिए. डेल्टा x into delta v must be always greater than equal to h by 4 pi m. Okay, delta x into delta v must be always greater than, okay, your greater than equal to h by 4 pi. समझते हैं ये इक्वेशन क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे हेजनबर्ग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा v. ओके, तो एक एक करके समझते हैं. डेल्टा x मींस इट इज कॉल्ड एज uncertainty in position. Uncertainty in position, and delta v is uncertainty in velocity. Okay, have a look, sir. We are having uncertainty in position, that is delta x, and we are having delta v, that is nothing but uncertainty in velocity. Sir, ये uncertainty है क्या? सोचिए आपने क्या किया, एक लैब में गया और वहां पे आप ना एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रॉड रखा हुआ है. आप ना इस रॉड का लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की. तो आपका एक दोस्त ने गया पहले कैलकुलेट करके आया और बोला कि अरे ये तो 5.25 सेंटीमीटर्स है. और एक और मतलब तुम गए और तुम कैलकुलेट किए और तुमको पता चला कि ये 5.2498 सेंटीमीटर्स है. ओके, नाउ ओरिजिनल जो इसका लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है वो कहीं लिखा हुआ है कि ये है 5.2998 ऐसे लिखा हुआ है. ओके, तो अब हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है अनसर्टेनिटी. द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी इज रियल वैल्यू से तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू का डिफरेंस कितना है, उसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलेंगे. ध्यान रखिए, रियल वैल्यू से आपका कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में ओके डिफरेंस कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे हमारा अनसर्टेनिटी. तो देखते हैं सर, ये पहला वाला तो था 5.25. ओके, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा और क्लोजर ले आते हैं.
say for example 5.2510 ये था तुम्हारा say for example real length 5.25100 और तुमने कैलकुलेट किया 5.2498 और तुम्हारे दोस्त ने कैलकुलेट किया 5.2500. तो what is the uncertainty? Sir, real value minus the calculated value is called as the uncertainty. मतलब अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है कि आप रियल वैल्यू से कितना दूर हैं, मतलब आप कितने क्लोज हैं तुम्हारा वैल्यू से, उसे अनसर्टेनिटी बोलते हैं. तो हैव अ लुक सर, 5.25100 minus 5.25000. So my friend is 0.00100. That means his uncertainty value delta x is 0.001. Okay, whereas what I have calculated or what you have calculated, इसका अनसर्टेनिटी कितना आ रहा है, चले देखते हैं. 5.25100 minus 5.24980. okay, so 0, 10 में से 8 गया 2. okay, now 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये 0, ये 0, 0.011. ओके, सो इसका तुम्हारा आ जा रहा है 0.011, उसका था 0.001, ये तुम्हारा आया 0.011. नाउ अगर आप दोनों अपने जो रियल वैल्यू से बहुत ही एक्यूरेटली आप लोगों ने कैलकुलेट किया अपना पोजीशन, तो तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है ना, वो बहुत ही हाई हो जाएगा. मतलब आप दोनों के दोनों एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. मतलब अगर आप लोग अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अगर अभी कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी ग्रेटर देन 100. देखो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना आया, 0.001 या 0.01 समथिंग, बट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगा 100 पॉइंट समथिंग. मतलब उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा से फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, आपको आएगा वैल्यू 202.5 मीटर पर सेकेंड. मतलब there will be a lot of difference. So what Heisenberg is saying is it is highly impossible to calculate both position and velocity of an electron both accurately and simultaneously. मतलब आप simultaneously calculate नहीं कर सकते, आप अलग अलग calculate कीजिए, it will be possible. But if you want to calculate both simultaneously, matlab at a time and as well as you want it accurately, now that is not possible. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now this same Heisenberg's uncertainty principle can also be written as, this can also be written as, let us see इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए. This can also be written as delta x into delta v. अब ये m क्या करेंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, m delta v in is greater than equal to h by 4 pi. अब ध्यान से देख के बताइए तो m into delta v, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं मास into velocity is called as momentum. So delta x into m delta v is delta p, that is greater than equal to h by 4 pi. So del x into del p is greater than equal to h by 4 pi. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. Where delta p is change in momentum. So Heisenberg ने जब अपना प्रिंसिपल दिया कि अरे इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी एक ही साथ कैलकुलेट कर लें, ये नहीं होगा, तो तभी हम लोगों को बोर्स मॉडल में प्रॉब्लम एराइज हुआ. अकॉर्डिंग टू बोर, उसने तो कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल, प्योर पार्टिकल कंसिडर किया उसने. तो जो कि अभी हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्योर पार्टिकल नहीं है, उसका वेव नेचर भी है. और बोर ने बोला हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, कौन सा ऑर्बिट में है, कितना वेलोसिटी में है, ओके, सब कुछ एक्यूरेटली बता सकते हैं, उसका एनर्जी बता सकते हैं करके बोला. बट
नाउ हम लोगों को पता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल, द एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। तो यही हमारा डीमेरिट्स हो जाते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। तो 2 डीमेरिट लिखेंगे, पहले ये लिख लो आप लोग अगर लिख लिए हो, इसके बाद छोटा सा हेडिंग दो, डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले भी लिखे हो, अभी और ऐड करेंगे उसमें, डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वहां पे लिखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम, Bohr's model of atom considers electron to be a pure particle, considers electron to be a pure particle, whereas we know that electron has wave nature too. Electron has wave nature too. Number 2, according to Bohr's model of atom, or else according to Bohr's theory, we can calculate position and velocity of an electron accurately and simultaneously, which is contradicting Heisenberg's uncertainty principle. सर सेकंड पॉइंट का थोड़ा फिर से बोल दीजिए। बोलो बेटा। सर सेकंड पॉइंट का थोड़ा फिर से बोल दीजिए। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग क्या बताया? According to Bohr's theory, we can calculate position and According to velocity. Bohr's theory, we can calculate position and velocity of an electron accurately, but this contradicts Heisenberg's uncertainty principle. तो यहां पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है? तुम लोगों को इसके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे बोर्ड्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें, then there will be a straightforward question asking state Heisenberg's uncertainty principle. और अगर हम कोई क्वेश्चन अगर हम लोगों को देता है, प्रॉब्लम अगर हम लोगों को देता है, वो कैसा देगा सर? Uncertainty in position is equals to, excuse me, 0.005 दे दिया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0.005। और अगर हम लोगों को पूछ रहा है व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे del x into delta v is greater than equal to h by 4 pi m, where m is what? Mass of electron. तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा v must be greater than equal to h by 4 pi m, और ये 0.005 को उस तरफ ले जाएंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे 4, पाई का वैल्यू, m का वैल्यू, पाई कितना है 3.141 और 22/7 whichever you want to use, m mass of an electron 9.1 into 10 to the power minus 31। इसको पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, आए समझ में? हाँ सर। ओके,
Now I'm giving you a question related to lambda. Try it, sir. Find wavelength of an object having mass 300 grams and moving with a velocity 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, ज्यादा फास्ट मूव करवाएंगे तो क्या होगा? एंड नंबर 2, फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ओके, ध्यान दीजिए मैं क्या पूछ रहा हूं. फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ओके, इफ uncertainty in position is 0.005. ये दोनों कैलकुलेट कीजिए सर. आया? सर फर्स्ट का आ गया. सेकंड का देखो.
पहले अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब पूछा है, देखो डेल्टा पी पूछा है, यस और नो? हाँ सर। चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। कितना आया सर? वन 105। बोलो बेटा। सर 0.01 into 10 to the power minus 32। 0.01 into 10 to the power of minus 32। ठीक है, चाहे वो -32 हो या 105.47 इंटू 10 टू द पावर -34 हो, आप लोगों को एक चीज यहाँ क्लियरली पता चल गया होगा कि सर 20 मीटर पर सेकेंड से हम लोग अगर वेलोसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा के अगर हम लोग कर देते हैं उसे 200 मीटर पर सेकेंड, तब भी हम लोगों का, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक चीज गौर कीजिए आप लोग। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0.005 कितना एक्यूरेटली कैलकुलेट किए, देखो वेरी वेरी लेस वैल्यू से हमारा डिफर कर रहा है पोजीशन का वैल्यू, बट मोमेंटम का वैल्यू देखिए, मतलब अगर मोमेंटम देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है या फिर इतना ज्यादा एक्यूरेट है, देन आपका पोजीशन इतना ही एक्यूरेट है। मतलब दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा तो दूसरा एब्सर्ड वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप लोगों का डिफरेंस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। So this is actually your Heisenberg's uncertainty principle. Now, after the Heisenberg's uncertainty principle,
you will come across the Schrodinger's wave equation. क्या है next? Schrodinger's now what exactly is this Schrodinger's wave equation? अभी तक जितने भी हमारे physicists and chemists थे, they were trying to take electron, few of them were trying to take electron to be a particle, few of them they tried to take dual nature, electron to be both particle and wave, but Schrodinger is one who considered electron to be a pure wave. क्या कंसिडर किया? इलेक्ट्रॉन को एक प्योर वेव कंसिडर किया, और वेव कंसिडर करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन लिखा। देखिए सर, बहुत बार कैसा होता है, हम लोग ना एक सिचुएशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करके। फिर जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x minus 3 is equals to 0, x times x plus 3 minus 1 times x plus 3 is equals to 0, okay, x minus 1 into x plus 3 is equals to 0, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है एक्चुअली, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोगों को ये पता चलता है कि सर अगर कोई फिजिकल सिचुएशन के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा, हमें उसका सॉल्यूशंस पता चलता है कि सर ये फिजिकल इक्वेशन जो है कौन कौन सा वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 होने से सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल्स टू -3 होने से सेटिस्फाई करेगा। तो उस तरह से ओके देखिए, ऐसे इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग एज को लेके भी लिखे हैं, फादर्स एज इज 15 टाइम्स ऑफ दिस whereas now it is only 2 times of this बोलने से दो इक्वेशन लिखते हैं, उनसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से स्क्रॉडिंजर ने क्या किया सर, इलेक्ट्रॉन का पाथ के लिए ओके ही ट्राइड टू राइट एन इक्वेशन एंड दैट equation is called as nothing but the Schrodinger's wave equation. And what is that equation? How is that equation represented? Hamilton psi is equals to E psi. Okay, ये जो त्रिशूल जैसा बना हुआ है ना, उसे हम लोग psi फंक्शन बोलते हैं, और H is Hamilton and this is E, दोनों को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। एंड देन psi फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं psi फंक्शन। ओके, सो Hamilton psi is equals to E psi is the equation that Schrodinger has written for the path of an electron. तो ध्यान दीजिए सर, Hamilton psi is equals to E psi क्या है, वो इक्वेशन क्या प्रेजेंट कर रहा है अंदर, वो सब हम लोग नहीं देखेंगे। We are not worried about it because वो हमारे पूरा स्कोप से ही बाहर है। हम लोग किस चीज पे फोकस करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। मतलब ये जो स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से हमें एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये क्वांटम नंबर्स क्या है और इन क्वांटम नंबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग देखेंगे। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिए सर, Schrodinger was the first person to consider electron to be a pure wave, and pure waves are always represented by mathematical equations. So Schrodinger for the first time tried, in order to write a equation, okay, a mathematical equation for an electron, and that equation is for us, okay, simplified and is represented as Hamilton psi is equals to E psi, okay, H psi is equals to E psi। इसके बारे में और डीपली जानने की जरूरत हमें नहीं है, हमारे स्कोप से बाहर है। So simply, sir, Hamilton and E are mathematical operators and psi is nothing but a wave function. Okay,
तो हैमिल्टन साइज इक्वल्स टू ई साइज जब हम लोग करते हैं, राइट, तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों को कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं, और उन सॉल्यूशंस से हमें एक एटम के बारे में और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओके, ध्यान दीजिए, एक एटम के बारे में, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, इन सब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऑलराइट, तो ये सब कैसे पता चलता है, और हैमिल्टन साइज इक्वल्स टू ई साई को सॉल्व करने से कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से एक आंसर मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से दो आंसर्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने से तीन रूट्स मिलेंगे। उसी तरह से स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हैं चार। तो सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वाला है एजिमुथाल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, azimuthal quantum number. The third one is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. Okay, तो हम लोग एक एक करके इन क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग टेक्स्ट बुक में अच्छे से, ओके, डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम से लेकर आपका कुछ बोल रहे हो अभिप्सा? सर बुक में 3 ही दिया है, 4 स्पिन वाला तो नहीं दिया है। कैसे नहीं देगा बेटा, चारों क्वांटम नंबर्स दिया हुआ होगा, अच्छे से देखो। सर सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स बोल रहा है। नो नो नो, 4 तो बुक में वैसे ही लिखना। नहीं, मेरे पास प्रेजेंटली बुक नहीं है। 4 क्वांटम नंबर्स, ओके, I'll show it to you, wait. कहाँ पे तुमको सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स दिया है? See, we have, what are quantum numbers? The set of numbers used to describe position, energy and electron of an electron in an atom is called quantum numbers. There are 4 quantum numbers, namely principal, azimuthal, magnetic and spin quantum numbers. So you see, what are 4 quantum numbers? So 4 quantum numbers are needed, that is energy, angular momentum, magnetic moment and spin. तो 4 क्वांटम नंबर्स रहेंगे हमारे पास। टेक्स्ट बुक में भी 4 ही है बेटा, पता नहीं तुम। सर दिया है कि these quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number and नो नो magnetic. नो, हाँ, अभी तुम पूरा और आगे नहीं पढ़े हो। एक्चुअली द ऑर्बिटल्स, मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्बिटल, सबसेल, सेल्स, उनको हम लोग 3 डिफरेंट क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। और जो 4th क्वांटम नंबर है तुम्हारा, वो स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो 4th क्वांटम नंबर, एक पेज आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा। हाँ सर दिया है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो ये क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे आप लोग, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, बोर्स मॉडल का डीमेरिट्स, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्वांटम नंबर्स। चलिए सर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।